Good morning, everyone. We were doing exercise for 5.2 and we have completed 15 questions of exercise 5.2, and today we are going to complete this exercise and we are going to start with question number 16. Here you all very well aware that we are applying the formula of general term, that is an is equal to a plus n minus 1 multiply d. This formula we are using to calculate the nth term, the general term of given AP. AP means a sequence where the terms are at equal distance from each other, right? Each succeeding term is at equal distance from the preceding term, right? Okay, your question now is your third term. You are given an AP. In that AP, they are saying third term is 16. Seventh term exceeds the fifth term by 12, right? So we have to convert these two statements in the form of equation, mathematical equation. How we will write? Third term means A3. This is given to us 16, right? And the next one is seventh term means A7 exceeds the fifth term. Exceeds मतलब ज्यादा है, बड़ी है. किससे बड़ी है? Fifth term से, right? Seventh term, fifth term means A5 से कितनी बड़ी है? 12 बड़ी है. That means the difference of the two is 12. A7 minus A5 is equal to 12. अब इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई करना है और दो इक्वेशंस आपके पास आएंगी, एंड फ्रॉम दोज टू इक्वेशंस, जस्ट लाइक वी आर डूइंग इन ऑल द क्वेश्चंस, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी. और ए और डी की वैल्यू आते ही आपके पास एपी आ जाएगी. यू हैव टू डिटरमाइन द एपी, यू हैव टू फाइंड आउट दैट एपी, राइट? तो चलिए, लेट मी फर्स्ट कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. A3 means we can write it as a plus 2d is equal to 16. First equation. Come on this now. A7 is a plus 6d minus है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं. A5 is a plus 4d. This is given to be equal to 12, right? अब इसको ब्रैकेट को खोल लीजिए. a plus 6d minus है plus minus minus 4d. This is equal to 12, right? A and A both are same but with different sign. So these two will get cancelled, but we will get 6d minus 4d. That means 2d is equal to 12. So d is equal to 12 upon 2, that is 6, right? आपके पास common difference आ गया. We have to now find out the value. We are going to put this value over here. Yes. A is equal to 4. 2 by 6 is equal to 16. Means A plus 6 2s are 12 is equal to 16. That means A is equal to 16 minus 12, that is equal to 4, right? First term आपके पास आ गई, common difference आ गया. We have to find out the AP. So we are saying AP is, first term is 4, next term is 4 plus D, 4 plus 6, that is 10, and then the next term will be 10 plus 6, that is 16. Second term में D आपने ऐड किया, third term आ गई. So your AP we can say is 4, 10, 16 dash dash dash. ठीक है, आपने AP फाइंड आउट करनी थी. आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है, उन स्टेटमेंट्स को आपने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है. And after converting them into equations, you will have to find out the value of A and D. और जैसे ही आपके पास A और D आ गया तो आप AP find out कर सकते हो, right? So this was your question number 16. If any problem is there, please raise the hand. Then I am switching to question number 17. In your 17th question, okay, 17th question is find the 20th term from the last. अब आपको 20th term अगर सिंपल बोलते हैं कि फाइंड आउट कीजिए 20th term, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं a plus 19, right? You are given the AP 3, 8, 13 dash dash dash, and the last term is given to you 253. We have to find out the 20th term from the last, from the back side. पीछे से अगर चलें तो पीछे से 20th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी? How will we find that value? Can anybody tell?
बेटा आपको पीछे से फाइंड आउट करनी है, आगे से आपको निकालनी आती है, ठीक है। तो आप इसको अगर बिल्कुल उल्टा कर दो तो आप जो आपको पीछे से निकालनी थी वो आगे से फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। आपने या तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा करने में इससे पहले आपका कौन सी टर्म आ रही होगी 253, देखो 3 से पहले 8 वाली आ रही है, तो यहाँ पर 248 आ रही होगी। सो 248 253, और आपने कर दिया इसका रिवर्स 253 248 डैश 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 1383। अब फाइंड आउट कर सकते हो 20th टर्म, वो आपकी 20th टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगी, राइट। यस मैम। एक तरीका तो ये है कि आपने इसको उल्टा कर दिया, यहाँ से आपने ए की वैल्यू लिख दी 253, डी लिख दिया आपने 248 माइनस 253, -3 कितना आ जाएगा माइनस -5 इट विल बी -5, ठीक है। फिर आप सिंपल फॉर्मूला लगा दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम अपने फॉर्मूले में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में चेंज कैसे कर देते हैं, देखो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो है, सिर्फ इजीएस्ट तरीका यही है कि आप इसको उल्टा करके लिख दो, उसमें आपको इससे पहले वाली टर्म अगर नहीं भी पता तो भी, तो कैसे करेंगे, उस केस में आप यहाँ से डी निकालोगे, आप इसको उल्टा माइनस कर दोगे, a1 माइनस a2 कर दोगे, तो आपके पास उल्टे वाली एपी का डी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका, मेरे पास फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि मुझे ये एपी पीछे से लेनी है, तो a की जगह मेरे पास आ जाएगा l, ठीक है। लास्ट टर्म मैंने लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया, और n माइनस 1 तो एज इट इज। उसके बाद बात आई डी की, अगर मेरी सीधे वाली एपी में डी 8 माइनस 3 कर रही हूँ, ठीक है, बट जब आप इसको उल्टा कर देते हैं तो आपको 3 माइनस 8 करना पड़ेगा, ठीक है। आपने अगर उल्टा किया 253 डैश 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 8 और 3, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस करते हो ना, ठीक है। बट वैसे अगर आप इसको देखो तो इसमें डी क्या है आपका 8 माइनस 3, और उल्टे वाली में है 3 माइनस 8, तो सिर्फ डिफरेंस क्या आया, चेंज कर आया। तो आप यहाँ पर जो भी वैल्यू है में साइन मैम ये समझ नहीं आ रहा। हो गया माइनस, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 डी। या तो आप ये सीधा यही वाला फॉर्मूला लगा लो, ये इंटू मैम नेट आपके आवाज नहीं आ रही। मैम your voice is not coming. चेक नाउ, यस हमारी Yes ma'am, now it's ठीक है, चलिए ओके देन लेट वी कंटिन्यू।
राइट बैक माइन है, हमें इसमें लिखनी है, इस वाली इसमें आपको ये टर्म नॉट क्लियर अगेन। आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। हाँ जी बेटा, ठीक है। अब यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस, हम लिख रहे हैं फ्रॉम द लास्ट, वी हैव टू राइट nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। आपको बता दिया फॉर्मूला l माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है d की, 8 माइनस 3 दैट इज 5। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। हमने 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब n का वैल्यू हो गई 20। ठीक है, और इसमें पुट अगर करोगे तो l है आपके पास 253 माइनस n माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1 और d आपके पास कितना है 5। ठीक है, and now this is equal to 253 minus 20 minus 1 is 19, 19 multiply 5, 19 5s are 158 answer. yes, when you will subtract you will get the answer to be 158। तो अब आपकी मर्जी है, आप चाहे ये फॉर्मूला लगा के करें या अपनी एपी को उल्टा करके a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, कौन सा ठीक है, कर दो इसे मैम erase? वो होता है मैम यही वाला ज्यादा सही है। ओके, बस इसमें फिर फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जब आप लास्ट से करेंगे तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी आपने याद रखना है। देन वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 18। फिर से हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, उन दो स्टेटमेंट को हम दो इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इक्वेशंस आने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a d एंड देन you will find out whatsoever they are asking in the question. The question is sum of 4th and 8th term is 24. 4th term and 8th term, their sum is 24. That means a4 plus a8 is equal to 24. And sum of 6th and 10th term is 44. 6th term and 10th term is 44. Right? इनसे आपने दो इक्वेशंस बनानी है. Let we put the values. We can write a4 as a plus 3d plus, अब प्लस है तो हमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है. a8 is a plus 7d. This is equal to 24. Simplify कर लेते हैं. a plus a is 2a, 7d plus 3d 10d, 2a plus 10d is equal to 24. यहाँ से सब में 2 कॉमन है. This is divisible by 2, this is divisible by 2, ये भी 2 से divisible है, तो हम सारी के सारी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं. राइट, या फिर आप कह लो कि मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया और उसको उधर शिफ्ट कर दिया, उसका भी एक ही मतलब है. आई एम डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स विद 2. तो ये हो गई a प्लस 2 5s are 10, 5d प्लस यहाँ हो गया 12. ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट. Your next statement is a6 plus a10. a6 can be written as a plus 5d and a10 can be written as a plus 9d. 9. This is equal to 44. Now collect the terms. A plus a is 2a plus 5d plus 9d is 14d is equal to 44. फिर से तीनों की तीनों टर्म्स 2 से डिविजिबल है, so we are dividing all the terms with 2. यहाँ से बच गया a, 2 से 2 कैंसिल. इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, 2 7s are 14, 7d is equal to 22. 44 का हाफ 22. ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. उसके बाद सॉल्व करने के लिए क्या करूं? एलिमिनेशन मेथड.
Yes, elimination method. I am subtracting equation number 1 from equation number 2. So I'll get a plus 7d is equal to 22. इसमें से मुझे माइनस करना है a plus 5d is equal to 12. Right? माइनस करना है means change all the signs. आपका a से a cancel. 7d minus 5d is 2d. 22 minus 12 is 10. Right? That means you will get d is equal to 10 upon 2, that is 5. क्लियर? अब आपको जब एपी फाइंड आउट करनी है, एपी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ए भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए, बट एट प्रेजेंट वी हैव ओनली डी. तो इस डी की वैल्यू को किस में पुट करते हैं, या तो इसमें या इसमें. ठीक है, इसको मैं इरेज यहां से कर रही हूँ. एंड माय इक्वेशन इज a plus 5d is equal to 12. In this equation I am putting d is equal to 5. So a plus 5 multiply 5 is equal to 12. A plus 25 is 12. You will get a is equal to 12 minus 25, that is minus 13. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास minus 13. कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास 5. ठीक है, AP क्या हो जाएगी, और AP will be फर्स्ट टर्म minus 13, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 5. कितना हो गया, minus 13 plus 5 is 8, minus 8. ठीक है, और नेक्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में फिर से आपने डी ऐड कर दिया. minus 8 plus 5 is minus 3. तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, you had to write 3 terms of the AP and the terms are minus 13, minus 8 and minus 3. Right? So these are the 3 terms of the AP. आपको जो भी गिवन था आपने उससे इक्वेशन फाइंड आउट करी है. 2 इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशन से आपने सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और जब a और d की वैल्यू आ गई, then you can write the terms of the AP. Clear? Let me proceed to the next question now. बेटा ये जो लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन है ना, l minus n minus 1 into d, ये आपका 2 साल पहले एग्जाम में आया था. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. और एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में. हाँ जी, From which question? फ्रॉम द लास्ट टर्म, राइट 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. ये वाला क्वेश्चन था ना अभी वो. From L minus n minus 1 into. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Now 19th question. Subha Rao started work in 1995 at annual salary of rupees 5,000. 5,000 रुपए से शोभा राव ने अपनी जॉब शुरू करी. एनुअल सैलरी वाज 5,000. पूरे साल की जो इनकम सैलरी थी वो 5,000 थी. एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 एवरी ईयर. हर साल उसको 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलता रहा. एंड यू हैव टू टेल इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000. कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 तक पहुंच जाएगी. सो पहले साल में इनकम है 5,000. नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, 200 रुपीज का उनको इंक्रीमेंट मिला है. व्हाट विल बी द एनुअल इनकम. हाँ जी, 7,000. no, after getting the increment of 200 rupees, what will be the salary next year. 5,000 से आपने शुरू किया. 5,000 में 200 का इंक्रीमेंट मिला. सो 5,200. 5,200. नेक्स्ट ईयर 5,000. 400. एंड दे आर सेइंग कि लास्ट में क्या हो जाना चाहिए, 7,000 हो जाना चाहिए. ये कौन से साल में होगा, मतलब ये कौन से नंबर की टर्म होगी. ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन से साल में होगा, कौन से नंबर पे इसकी टर्न आएगी. राइट, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. वैसे भी देखो आपके पास a भी है, d भी है, an भी है, तो फाइंड आउट क्या करना होगा, n. ठीक है, सो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. यहाँ से आपके पास a कितना है 5,000, d is difference 200, and last term an is given to you 7,000. फॉर्मूला लगा लो an का, a plus n minus 1 multiply d is 7,000. वैल्यूज पुट करके n की वैल्यू फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताओ. मैम 11. वेरी गुड, डन. राइट, 11 आई है. Yes. बिल्कुल 11 ठीक ही है. है.
बिल्कुल ठीक है बेटा, n will come out to be 11। अगर n की वैल्यू 11 आई है, दैट मींस उसको कितने 1995 में उसने जॉब शुरू की थी, उसकी कौन से साल में उसकी जो सैलरी है वो 7000 हो गई होगी? 2005 में 11th 2006 year में या 5 में? and 5 क्यों? मैम क्यों 11 ईयर्स में ऐड कर दिया ना मैंने, तो इसलिए हाँ जी, 11 साल 19 बढ़ाया। मैम 2006 मैम 2006 में होगी 1995 है ना, तो इसमें आप मैम 11 प्लस 2006 में होगी यस 2006 में 2006 आएगी, बिल्कुल 2006 2006 सॉरी में आएगी। ठीक है, आपकी n की वैल्यू आ गई यहाँ से 11, और 11 मींस 1995 में जॉब शुरू की थी। आफ्टर 11 इयर्स इट विल बी 2006, और 2006 में जाके जो उसको सैलरी होगी वो 7000 हो जाएगी, राइट? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज रामकली। बेटा इस क्वेश्चन में वैसे भी आप ये देखो 1995 में उसने जॉब स्टार्ट करी, तो उसको 1 साल बाद ही सैलरी मिलेगी, क्योंकि एनुअल सैलरी मतलब एनुअल सैलरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे पूरी, तो मतलब पूरे साल की उसको मिल गई 5000। इसका मतलब पूरे साल की 1996 में उसको मिली है 5000। ठीक है, 97 में जो उसे मिलेगी वो मिलेगी 5200, 98 में 5400, 99 में 5600, 2000 में 5800, ठीक है, और 2000 1 From 6000. यस, ठीक है, और 2002 में 6200, 6200. 2003 में 6400. हाँ जी 2004 में 6600, 05 में 6800. 6800, तो 7000 आपकी कौन से साल में 6000. जाके आई? 2006 में आपकी जो इनकम उसको मिलेगी सैलरी वो 7000 मिलेगी, राइट? तो 1995 में हमने 11 प्लस किया है एंड वी आर गेटिंग 2006, राइट? Next question, the last one. Ramkali saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly saving. पहले वीक में रामकली ने टोटल जो सेविंग की है वो ₹5 की है। उसके बाद उसने हर वीक अपनी सेविंग को 1.75 इंक्रीज कर लिया। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 1.75 इंक्रीज हो गया। पहले वीक 6.75 yes 5 plus 1.75 it will be 6.75 and they are saying कि उसके then increased her weekly saving by this if in the nth week her weekly saving becomes 20.75 find the value of n। अगर किसी वीक में जाकर उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो गई, कौन से वीक में होगी? दैट मीन्स आपका फिर से पहले जैसा क्वेश्चन, बट वी हैव टू फाइंड आउट ए है, डी है, एन है, फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, राइट? सो वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला। पहले उससे पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। ए इज 5, डी इज आपने 1.75 प्लस किया था, सो डी इज 1.75, ए एन इज 20.75, राइट? Apply the formula. A plus n minus 1 multiply d is equal to 20.75. Put the values. कितनी आ जाएगी? A is 5. 16 n की वैल्यू की वैल्यू 10 आएगी। किसकी? n की 10। n की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, n की वैल्यू आपकी 10 आएगी। n minus 1 multiply 1.75, इस 5 को आप इधर ले गए, you will get 20.75 minus 5 means 15.75 और n minus 1 इस 1.75 को आप करेंगे इधर शिफ्ट, ठीक है? इससे आप कैंसिल आपस में कैंसिल करोगे और ये 9 से आपका कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा ये 9 से आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? अगर नहीं है तो पहले डेसिमल्स रिमूव करो, 5 से कैंसिल करो, ठीक है? और फाइनली ये जाके 9 पर रुक जाएगा एंड देन यू विल गेट n इज इक्वल टू 9
1 आपने दूसरी तरफ शिफ्ट किया, 9 plus 1 is 10. So in the 10th week is weekly saving will become 20.75, right? So we have completed our exercise 5.2. और अब एक बार सिर्फ अगली एक्सरसाइज का हम फॉर्मूला कर लेते हैं so that we can apply the formula and start the class normally in the next week, right? अगली जो एक्सरसाइज है, हमारे पास जितनी भी टर्म्स गिवन हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज विल गिव यू द सम ऑफ द टर्म्स, राइट? आपके पास सपोज मेरी यही एपी है, 1 2 3 4 5 6 एपी है, ये है एपी with common difference. A is 1, first term is 1, common difference is 1. ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है, बताओ मुझे पहले 100 नंबर्स का सम कितना होगा। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, बताओ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग है, उनका नंबर्स का सम कितना होगा। Then we apply the formula Sn is equal to n upon 2 into a plus a and 2a plus n minus 1 into d. एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर हमारे पास होता है n by 2 into a plus a n. an लिख दो या l लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। an भी लास्ट टर्म हम कहना चाह रहे हैं, l से वैसे बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है that l is the last term. So आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, n by 2 into a plus l, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं आपके पास, कुछ नहीं है, दोनों सारे के सारे बिल्कुल सेम है, सिर्फ उनको लिखने का तरीका चेंज किया है। जिस क्वेश्चन में आपके पास लास्ट टर्म नहीं होगी वहां आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पे लास्ट टर्म होगी वहां आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। हम कह रहे हैं कि इसके 100 टर्म्स का सम कितना होगा, दैट मीन्स वी हैव टू टेक n इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे इसकी वैल्यू 100 upon 2, 2a, a is 1 plus n is 100 minus 1, d is also 1. मैंने सारी वैल्यूज पुट की हैं, a की, d की, n की, बिकॉज मुझे n टर्म्स का सम फाइंड आउट, 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सो एट द प्लेस n I have taken 100. This is 50. 2 multiply 1 is 2 plus 100 minus 1 is 99. Now 99 plus 2 is 101. Multiply 50 and you will get the answer to be 5050. ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का सम हमारा कितना हो जाता है, 5050. Now in the next class, one by one, I'll listen the formula from everybody. Then I will continue with the exercise, right? So today we are ending our session here only. Thank you and have a nice day. Each and every child